Good morning, students. A very warm welcome to my class, Adifly JNEET. So, just renew our previous classes. Previous classes I have discussed about the binomial nomenclature and all. So today I am going to discuss about the taxonomical aids. So what is taxonomical aids? Basically the studies of plants and animals. It's very important. Why? In order to know the bioresources and their identity, bioresources and the diversity, you can say. कहाँ से वो resource आ रहा है? तो for that we need to study the specimens of plants and animals. For that we need the actual identification of that specimen, that whether it be plant or animal, and how it can be done, why it is done. It is done in order to preserve or the future study. फ्यूचर स्टडी के लिए हम लोग इसको प्रिजर्व करके रखते हैं. ओके, सो हाउ दिस इज डन, आई विल जस्ट गिव यू द नोट्स. फर्स्ट लेट्स राइट अबाउट द टैक्सोनॉमिकल एड. स्टडीज ऑफ taxonomic studies of various plants and animals are required in order to know their bioresources and diversity. कितना डाइवर्स है एक प्लांट से दूसरा प्लांट या एक एनिमल से दूसरा एनिमल. ओके, और इसके लिए क्या होता है, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन इज वेरी रिक्वायर्ड ऑफ दैट स्पेसिमेन, वेदर बी इट प्लांट और एनिमल. सो व्हाट इज दिस प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन of plant and animal specimen is required. Okay, what specimens are done? जो plant animal specimens है, specimens are gathered. First they will be gathered from various places. Are first gathered, पहले gathered होते हैं, then stored, or you can say pressed. In case of plant species you have to press after drying with information, preserved with information for future use. What happens is that some of the plants or animals which has been extinct or due to like pollutions or degradation, due to pollution there are certain changes in the atmosphere, and so what happens is that many of the plants want to survive that pollution. So what happens is that the plant species or animal species that were extinct forever. Okay, so for that we have to store that plant, we have to gather that plant, and we have to store it for future reference or study. If anyone has to do research on that plant or animal, so they can just see their histories and all, for history and all, what type of animals were there, what type of plants were there, what are their basic characteristics, you can say. Okay, so this is all about taxonomical aids. So how it is studied, or you can say how the specimens are preserved, like plant or animal specimens, how they are preserved. So there are certain methods in which it can be preserved. Okay, so see, taxonomical aids include what it includes. The point by point I will discuss with you. Herbarium, next is botanical garden,
botanical garden where how the plant or animal species are being preserved. Third is museum. Fourth is zoological park. Fifth is keys. So these are the 5 ways in which we can preserve that plant or animal specimen. So just note down it. Okay. So we'll discuss from the herbarium part. So let's discuss what is herbarium. Herbarium क्या होता है? Herbarium. Basically, in herbarium, the plant specimens are preserved. Herbarium is a storehouse of plant specimen. Herbarium is a storehouse of plant specimen. प्लांट जितने भी प्लांट स्पीसीज है, स्पेसिमेंस है, उसको प्रिजर्व करते हैं. कैसे प्रिजर्व करते हैं? आई टेल यू. स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पीसीमेंस. Plant specimens that are first they are dried, then they are pressed, दबाना होता है, pressed, and they are pressed and preserved on sheets. Sheets क्या होता है? या तो न्यूज़पेपर sheets होगा और पेपर sheets, white paper sheets, preserved on sheets. Okay, so this is about herbarium. Now how it is prepared, you should know, because this is the definition of herbarium. The thing is that you have to know how it is prepared. This is extra knowledge for you. Preparation of herbarium. Okay, how herbarium is prepared. First step is field visit. Field visit करना होगा. Second step is collection of specimen. Collection of specimen. Third is pressing and drying. Pressing and drying. Fourth is mounting. Next is fifth is preservation. Sixth is labeling and storage. Okay, so first is how the herbarium is being prepared. First is field visit, second is collection of specimens, pressing and drying, fourth is mounting, fifth is preservation, sixth is labeling and storage. Whenever you will move on to your higher classes, some of you might take botany as your subject or as major subject. So what happens there the students has to do the field visit, their project work is included, so they has to prepare the herbarium. Okay, so let's discuss the preparation of herbarium. The first is field visit. Field visit में क्या होता है? Basically field visit सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है हेर्बेरियम का, फील्ड विजिट, है ना. सबसे पहला है इट्स फील्ड विजिट. ओके, so let's talk about the field visit. So what happens in field visit is that if you are going to collect any plant specimens, you have to visit. कहीं भी जाके आप जाइए जहाँ आपको प्लांट स्पेसिमेंस मिल सके, है ना. सो फॉर दैट प्लांट्स का क्या होता है? रूट होता है, शूट सिस्टम होता है, फ्लावर्स होता है, फ्रूट्स होता है. बट इट डजंट मीन दैट यू विल टेक आउट द एंटायर प्लांट यू कैन कैरी इट एट योर होम. सो कोई एक पार्ट आप लोगे जिसमें फ्लावर्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, शूट्स होंगे, रूट्स होंगे, सब कुछ मिलाते हुए उस प्लांट का इतना छोटा प्लांट होता है, इतना छोटा, उससे ज़्यादा नहीं होगा. रूट होगा, स्टेम होगा, फिर लीफ होंगी, फ्लावर होंगे, इस तरीके से प्लांट के छोटे से पौधे होंगे. ठीक है, तो ऐसा होता है फील्ड विजिट में. व्हेनेवर यू
will do field visit, you have to take certain tools. Certain tools are required, like you can say digger, वो काटने वाले नहीं होता, ट्रैवल और डिगर, यू कैन से डिगर यूज लेना होगा आपको, नाइफ लेना होगा, चाकू, हाथ से तो यूं ही काटोगे नहीं, यू नीड समथिंग टू कट, फिर सीजर्स लेना होता है, नाइफ, सीजर्स, देन स्टिक, छड़ी लेनी होगी। छड़ी क्यों? फॉर कलेक्शन ऑफ प्लांट। वन नोटबुक इज रिक्वायर्ड, अ फील्ड नोटबुक, a field notebook is required wherever you can write which from where the specimens are being collected. Okay, next is polythene bag, and the fourth is newspaper. Okay, तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी whenever you are going to field visit or ever you are going to collect the plant specimen. सही है, फील्ड विजिट में हो गया, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फील्ड विजिट के बाद हम देखेंगे कि प्रेसिंग एंड ड्राइंग, हाउ द स्पेसिमेंस आर प्रेस्ड एंड ड्राइड। सेकंड है प्रेसिंग एंड ड्राइंग। सी, आपने फील्ड विजिट किया, प्लांट स्पेसिमेंस को ले आए, कलेक्ट हो गया आपका, अब उसको धूप में नहीं ड्राई करना, यू हैव टू डू शेड ड्राई, छाया में ड्राई करिए उसे। ड्राई करने के बाद टेक अ न्यूज़पेपर लाइक दिस, शोइंग यू, न्यूज़पेपर हो, बड़ा सा न्यूज़पेपर, उसके अंदर आपने उस प्लांट को, जो भी प्लांट है उसको रख दिया एंड प्रेस करके उसको बेड के नीचे या मोटी किताब के नीचे रख दिए, वो शेड में ड्राई हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, स्पेसिमेंस, द स्पेसिमेंस आर स्प्रेड आउट, जैसे मैंने बताया वैसा करना है आपको, स्प्रेड आउट बिटवीन द न्यूज़पेपर्स and after 24 to 48 hours, like after 2 days you can take it out, after 24 to 48 hours, 24 to 48 hours, just take it out. Okay, so note down it. Okay, चलिए, बहुत इजी है, मैं आपको सारे पॉइंट्स डिस्कस करके देती हूँ। ठीक है, ये तो ड्राई हो गया, आपने निकाल लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, माउंटिंग। माउंटिंग क्या होता है, व्हाट इज़ माउंटिंग? माउंटिंग मतलब जो ड्राई हो गया ना, उसको आप निकाल के ग्लू से चिपका दोगे, एक हर्बेरियम शीट लोगे, हर्बेरियम शीट। ठीक है, पहले तो न्यूज़पेपर था, एक A4 साइज पेपर लोगे ऐसा, हर्बेरियम शीट जिसको कहेंगे, हर्बेरियम शीट। और यहाँ पे क्या करोगे, जो प्लांट आपको सूख गया उसे यहाँ ले आओगे, जो भी प्लांट है उसको यहाँ पे या तो ग्लू होता ना, ग्लू से चिपका दोगे या सेलो टेप लगोगे, सेलो टेप हो गया चाहे ग्लू हो गया, उससे उस पेपर पे चिपका दोगे। माउंटिंग वही होता है। ठीक है, माउंटिंग, माउंटिंग कैसे किए जाते हैं, माउंटिंग, dried specimens are mounted on, dried specimens are mounted on herbarium sheets. Okay, और एक बात, आप कोई भी पेपर नहीं ले सकते, देयर इज स्टैंडर्ड साइज फॉर द हर्बेरियम। साइज क्या है, 49 into I think it's 41 into 29 centimeter. This is the size of the herbarium sheets you have to take whether while you are preparing for the plant specimens or herbarium कह सकते हैं। Okay, so this is all about mounting. Mounting के बाद क्या करेंगे हम, preservation करेंगे। Okay, so we'll preserve, D number, प्रिजर्वेशन करेंगे। प्रिजर्वेशन क्या होता है ना,
क्योंकि वो प्लांट स्पेसिस ख़राब हो जाएगा कई दिनों के लिए ना, क्योंकि ड्राई कोई भी चीज़ रखोगे बहुत सालों तक, वो उसके लिए प्रिजर्व करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, 2% सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड। फंगिसाइड से ही, मर्क्यूरी क्लोराइड इज अ फंगिसाइड। for preserving of plant specimens you have to use fungicides, 2% of mercury chloride. Okay, so preservation is done by fungicides, क्योंकि फंगस लग जाएगा इसलिए फंगिसाइड्स की ज़रूरत होती है जो फंगस को मार डालेंगे, लाइक 2% सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड। हो गया, अपने माउंटिंग कर लिया, अपने प्रिजर्व भी कर लिया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। माउंटिंग हो गया, प्रिजर्वेशन हो गया, अब लेबलिंग कर लेते हैं। लेबलिंग, अब बात करते हैं लेबलिंग। तो लेबलिंग में क्या करना होता है, जैसे आपने ये प्लांट चिपका दिया, द राइट कॉर्नर, राइट साइड, राइट कॉर्नर में आपको क्या होता है, बॉक्स बनाना है। बॉक्स बना के वहाँ पे आपको क्या चीज़ें लिखनी है, लोकेलिटी लिखनी है। लोकेलिटी, लोकेलिटी कहाँ से हुआ, फिर अल्टीट्यूड, टेम्परेचर एंड ऑल यू हैव टू मेंशन। देन हैबिट, कहाँ से आपने कलेक्ट किया, हैबिट एंड हैबिटेट। फिर कितने बजे कलेक्ट किया, टाइम, टाइम ऑफ कलेक्शन। देन डेट, नेम ऑफ कलेक्टर, किसने कलेक्ट किया। देन यू हैव टू राइट कॉमन नेम एंड देन साइंटिफिक नेम। तो बेसिकली लेबलिंग ऐसे की जाएगी। लेबलिंग क्या करना होगा, राइट साइड कॉर्नर पे आपको लोकेलिटी, अल्टीट्यूड, हैबिट, कितने बजे कलेक्ट किया आपने, कितने तारीख को कलेक्ट किया है, किसने कलेक्ट किया, नेम ऑफ कलेक्टर, कॉमन नेम मतलब नेम ऑफ कलेक्टर मतलब दैट प्लांट का नाम क्या है जो आपने कलेक्ट किया है, कॉमन नेम एंड द साइंटिफिक नेम। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको A4 साइज पेपर जो भी आपने हर्बेरियम शीट्स लेंगे उस पर लिखना पड़ेगा कि ये प्लांट कहाँ से लिया है, सारी डिटेल्स लिखनी पड़ेगी, उसी को कहते हैं लेबलिंग। ओके, चलो लेबलिंग हो गई। अब बात करते हैं स्टोरेज। स्टोरेज हो गई, लेबलिंग करनी है, अब हम स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है, पेपर फोल्ड बना के, हर्बेरियम शीट्स जो होते हैं ना उसकी पेपर फोल्ड बना के एक अलमीरा में उसको अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन उसको तरीके से रख दिया जाता है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स और एनी रिसर्चर अगर आए तो उन्हें तरीके से मिल जाए। लेबलिंग तरीके से होती है और स्टोरेज उसको एक अलमीरा में रख दिया जाता है प्रॉपर फोल्ड करके। क्या किया जाता है, दे आर प्लेस्ड इन द proper fold which are kept together, इकट्ठे रख दिया जाता है उसको। ओके, which are kept together and finally they are incorporated in the herbarium cupboard। herbarium cupboard होता है जिसे अलमीरा छोटा सा, उसमें सबको रख दिया जाता है। बेसिकली वही होती है स्टोरेज। चलिए, अबाउट हर्बेरियम इज कम्प्लीटेड। हर्बेरियम क्या होता है मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, दैट इज बोटानिकल गार्डन। आप में से कितने लोग बोटानिकल गार्डन गए हैं मुझे तो नहीं पता, बट मैं गई हूँ। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में, व्हेन आई वाज स्टडिंग इन माय यूनिवर्सिटी, दैट इज इन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, दैट टाइम our each university has their own botanical garden because they has to do research and all. So वहाँ पे क्या होता है, बॉटानिकल गार्डन में जितने भी प्लांट स्पीसीज लाइव, डेड नहीं होता वहाँ पे, लाइव याद रखिएगा, लाइव। लेकिन हर्बेरियम में क्या था, डेड, जो प्लांट मर चुका है उसको हम ड्राई करके रख रहे हैं। लेकिन बॉटानिकल गार्डन में क्या होता है, लाइव प्लांट स्पीसीज रखा जाता है। प्लांट स्पीसीज मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, उनका उस पेड़ का लोकल नेम होता है, उसका साइंटिफिक नेम होता है, ताकि जो भी लोग जाए और जिस पे उसको काम करना है वो मिल जा रहा है, ये तो ये प्लांट है, मुझे इस पे काम करना है। ओके, तो बोटानिकल गार्डन, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग गए हैं बोटानिकल गार्डन, बट यू शुड विजिट।
यू शुड टेल टू योर टीचर्स टू जस्ट टेक टू योर बोटानिकल गार्डन। तो बोटानिकल गार्डन में क्या होता है, दिस स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंसेस। दिस gardens have collections of living beings, living plants, not living beings, living plants for references। that means क्या होता है, इसमें जितने भी लिविंग प्लांट्स होते हैं जिनको फ्यूचर स्टडी करनी है, रेफरेंसेस, दे हैज टू गो टू बोटानिकल गार्डन। इफ समवन इज डूइंग रिसर्च ऑन एनी प्लांट स्पीसीज, he or she has to go to the botanical garden to identify the species, whether which species they are working on. The details they'll get from the demonstrator who is handling that botanical garden. Okay, so this is about botanical garden. Many more thing. Yeah, plant is labeled indicating its botanical name और साइंटिफिक नेम, उसकी फैमिली, कौन सी फैमिली से, सब कुछ मेंशन रहेगा। ओके, प्लांट इज लेबल्ड indicating its botanical name को साइंटिफिक नेम कह सकते हो, साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। ओके, सो इतना ही जानना आपको बोटानिकल गार्डन में। एक इम्पॉर्टेंट थिंग बताना है आपको, फेमस द लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन, अगर आपको क्वेश्चन आए लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन कहाँ है, इट्स क्यू इंग्लैंड। कहाँ पे है, फेमस है, तीनों ही फेमस है। एक है इंडियन बोटानिकल गार्डन कोलकाता, एंड नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, और एक है क्यू मतलब इंग्लैंड में। तो बोटानिकल गार्डन कहाँ कहाँ है, फेमस, बहुत फेमस है, जिसको सभी जानते हैं और आप सबको विजिट करनी चाहिए वंस। ओके, फर्स्ट इज क्यू, ये सबसे लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन, इफ यू कैन से दैट इज क्यू इंग्लैंड। नीट में क्वेश्चन आता है इससे, लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन। दूसरा बात करते हैं इंडियन बोटानिकल गार्डन, जो कहाँ है, कोलकाता में है। कोलकाता में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। इंडियन बोटानिकल गार्डन, इफ़ सम ऑफ यू हैव विजिटेड और लाइक पेरेंट्स के साथ घूमने गए हो तो जाहिर सी बात है इंडियन बोटानिकल गार्डन में आप लोग गए होंगे। बहुत अच्छी दृश्य है क्योंकि मैं रह चुकी हूँ कोलकाता में, सो आई हैव सीन। नेक्स्ट इज नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ है ये, लखनऊ। दोज हू आर फ्रॉम लखनऊ, they might have heard of this or they might have visited it. Okay, चलो, so this 3 is mentioned in NCERT book even। लार्जेस्ट याद रखिए क्यू इंग्लैंड, और बाकी इन दोनों के बारे में भी याद रखिए, बहुत फेमस बोटानिकल गार्डन्स है। ओके, चलिए, बोटानिकल गार्डन्स हो गया। चलो, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट म्यूजियम। बोटानिकल गार्डन की बात किया था, म्यूजियम था ना, देन ज़ूलॉजिकल पार्क एंड देन कीज। ओके, चलो बात करते हैं म्यूजियम्स। म्यूजियम्स क्या होता है, आप सब लोग म्यूजियम गए हैं बचपन में ना, पापा म्यूजियम चलना है। तो म्यूजियम में क्या रखा जाता है, बेसिकली प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज आर प्रिजर्व देयर। ओके, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में वो सेटअप करते हैं, लाइक ताकि बच्चे देखें म्यूज़ियम के बारे में। बहुत सारे जो प्लांट स्पेसिमेंस है, स्पेसीज है, स्टडी के लिए, रेफरेंस के लिए उसको वहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है म्यूज़ियम में, जो ज़िंदा नहीं है ना। ज़ूलॉजिकल पार्क में तो जिंदे एनिमल्स को रखा जाता है, लेकिन म्यूज़ियम में जो नहीं है अब इस दुनिया में, उन्हीं को प्रिजर्व, स्केलेटन वगैरह प्रिजर्व किया जाता है। बहुत सारी जगह डायनासोर हो गया, आप म्यूज़ियम में जाओगे तो डायनासोर का तो स्केलेटन इज़ वेरी कॉमन। आप जाओगे म्यूज़ियम में तो देखोगे वहाँ स्केलेटन रखा ही हुआ आता है, ताकि बच्चे देखें अच्छा डायनासोर ऐसा होता था और अब तो है नहीं, वो ख़त्म हो गया ना, इस तरीके से। सो म्यूज़ियम्स क्या होता है, म्यूज़ियम्स हैव कलेक्शंस ऑफ
plants and animals for references and study. हम वहाँ प्रिजर्व करते हैं ताकि जिनको पढ़ाई करनी है उसके ऊपर he or she can take help from it. References and study. Educational institutes they have set up for museum. Educational institutes have set up for this museums and all, or basically skeletons are preserved, skeletons of animals are preserved. So just note down it. ओके, सो बेसिकली और एक बात जान लीजिए, इंसेक्ट्स कहाँ प्रिजर्व होते हैं? इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्ट करने के बाद उनको क्या किया जाता है? किलिंग एंड, उनको मार दिया जाता है, किलिंग एंड पिन करके। और जो लार्ज एनिमल्स होते हैं ना, लार्ज एनिमल्स दे आर स्टफ्ड, उनको क्या किया जाता है? स्टफ क्या होता है? उसको पूरा क्रश कर दिया जाता है, स्टफ करके प्रिजर्व किया जाता है, स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। लार्ज एनिमल्स कैसे प्रिजर्व होते हैं? लार्ज एनिमल्स स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। ओके, चलिए, म्यूजियम इज डन। नाउ विल मूव ऑन टू ज़ूलॉजिकल पार्क्स। ठीक है, ज़ूलॉजिकल पार्क्स के बारे में पढ़ते हैं। आप सब लोग पार्क गए हो ना? पार्क, ज़ूलॉजिकल पार्क बहुत अच्छा लगता है ना? बहुत सारे जानवर देखने को मिलते हैं, इतने सारे लाइव जानवर जो आप कहीं नहीं देख पाओगे, वहाँ ज़ूलॉजिकल पार्क्स में ज़रूर देखोगे। ज़ूलॉजिकल पार्क्स, ये तो पता है सारे बच्चों का बहुत फेमस होता है। मुझे बमी पिकॉक देखना है, बहुत अच्छे अच्छे फिदर वाले पिकॉक दिखते हैं, वल्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, सब प्रिजर्व, सब वहाँ पे लाइव रखे जाते हैं अंडर द ह्यूमन केयर। ह्यूमन उसको केयर करते हैं, उनको वैसी एनवायरनमेंट देते हैं, जंगल वाली एनवायरनमेंट की आप वहाँ रहो, घूमो। अब सारे जानवर को तो बाहर छोड़ देंगे तो हम ही ख़त्म हो जाएंगे। सो वेन एवर वी विजिट फॉर द zoological park, so what happens is that they'll say you that just stay a bit far from that, because if that animals comes out or you are gone. Okay, so next is zoological parks हम पढ़ रहे हैं। zoological parks क्या होता है? the places where wild animals are kept। क्या है ये? these are the places, क्या होता है यहाँ? where wild animals are kept। okay, क्योंकि डोमेस्टिक एनिमल्स डजंट हार्म यू ना, डोमेस्टिक एनिमल्स तो हार्म करते नहीं है, तो उसको आप घर रख सकते हो, बट वाइल्ड एनिमल्स तो आपको हार्म कर सकते हैं। तो उनको अगर जू में प्रॉपर तरीके से बंद करके ना रखें तो फिर तो क्या होगा? इसलिए रखा जाता था कि बच्चे जाने के अच्छे इस तरह के एनिमल्स वहाँ, क्योंकि जंगल में जाओगे तो वहाँ तो बचने की उम्मीद कम है ना। दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर कैप्ट अंडर ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन केयर। ओके, अंडर ह्यूमन केयर। ओके, चलो लिख लो। ओके, हो गया ना? ज़ूलॉजिकल पार्क में बस ये जान के रखिए क्या होता है वहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं की इज़ द लास्ट, यू कैन से लास्ट टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन। यू कैन से कि क्या होता है? टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन क्या होगा? या तो सिमिलरिटीज देखते हैं, डिससिमिलरिटीज, कितनी सिमिलरिटीज है उससे हम की से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो की क्या होती है? की इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ plants and animals based on similarities and
dissimilarities. Okay, fine. So this is based on contrasting characters, that is generally in pair. Contrasting characters क्या कहते हैं? जैसे अगर एक लंबा हुआ तो दूसरा छोटा हुआ, दूसरा एक का कलर रेड हुआ तो दूसरा का ग्रीन हुआ, दैट इज नोन एज कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, और वो भी पेयर में. ओके, बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पेयर, जो पेयर में होते हैं उन्हीं के बारे में हम जानते हैं इसमें की के थ्रू. तो क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, एक को अगर एक्सेप्ट, दोनों को एक साथ नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो. क्वेश्चन आता है की के बारे में. इफ वन इज एक्सेप्टेड द अदर हैज टू बी रिजेक्टेड. इफ वन इज एक्सेप्टेड, if black is accepted then blue is rejected. If one is accepted then the other is rejected. Okay, done. आप दोनों में से एक को ही चूज करोगे, either of the two. Okay, write it. ओके, और भी बाकी है की के बारे में, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो रहा है ये, थोड़ा बहुत की के बारे में जानना ज़रूरी है आपको. ओके ना, चलिए. इसमें क्या होता है ना कि फॉर लाइक डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, लाइक फैमिली हो गया, जेनस हो गया, स्पीसीज हो गया. फॉर डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी दे हैव सेपरेट कीज. फैमिली की होती है, जेनस की होती है, और स्पीसीज की होती है. ओके, अब बात करते हैं कि इट इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज आइडेंटेड एंड द सेकेंड इज ब्रैकेटेड. अब इसके बारे में हम जान लेते हैं, आप तब तक लिखिए. सो इंडेंटेड में क्या होता है, सीक्वेंस बेस्ड कैरेक्टर एक्सेप्टेड करना होता है. इसमें क्या होता है, सीक्वेंस बेस्ड कैरेक्टर की स्टडी होती है. लाइक लीफ का शेप कैसा है, राउंड है, ओवल है, ठीक है, या फिर स्टेम की लेंथ कैसी है, लंबी है, छोटी है. फ्लावर कैसा है, बड़ा है, छोटा है. तो क्या कह सकते हो उसमें, फ्लावर हो गया, स्टेम हो गया, फ्लावर हो गया, स्टेम हो गया, और लीफ हो गया. और इसमें क्या होता है, ब्रैकेटेड की हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, है ना. प्लांट मॉर्फोलॉजी में अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में. तो पहले इसके बारे में थोड़ी बहुत बेसिक्स जान लीजिए. ब्रैकेटेड की में क्या होता है, लाइक विंग्स के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल स्टडीज, जैसे कि उसके विंग्स प्रेजेंट है, विंग्स एब्सेंट है, पीक कैरेक्टर कैसा है, चोंच, पीक लंबा है कि छोटा है, या फिर टेल्स के बारे में, टेल्स लंबा है, छोटा है, पीक के बारे में पढ़ेंगे, टेल्स के बारे में पढ़ेंगे, विंग्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हम ब्रैकेटेड की में इसके बारे में पढ़ेंगे, इंडेंटेड में इसके बारे में, ठीक है ना. तो कीज हो गया. और भी सम मोर टैक्सोनॉमिकल स्टडीज आर देयर थ्रू विच यू कैन स्टडी, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है. लाइक अदर टैक्सोनॉमिक स्टडीज यू कैन से, अदर टैक्सोनॉमिक स्टडीज आप कह सकते हो, जैसे कि मोनोग्राफ के बारे में है आपकी बुक में मेंशन. देन इट्स मेंशन इज फ्लोरा, मैनुअल्स, फ्लोरा के बारे में मेंशन है, मैनुअल्स के बारे में मेंशन है, और कैटलॉग के बारे में. ये चारों के बारे में आपकी बुक में मेंशन है. इसके थ्रू भी आप टैक्सोनॉमिकल एज की स्टडी कर सकते हो. ओके, तो फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा मतलब क्या होता है, एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन मतलब कहाँ से आप, एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन ऑफ
habitat for plants and animals species. कहाँ से एक्चुअल हैबिटेट कहाँ से आप कलेक्ट किए हो वो फ्लोरा के थ्रू पता होता है. मोनोग्राफ क्या होता है? इट्स यूजफुल इन प्रोवाइडिंग information is useful in providing information of any species. तो वो होता है मोनोग्राफ. मैनुअल्स क्या होता है? सॉरी ये मैनुअल है. मैनुअल होता है, मैनुअल मीन्स इज यूजफुल इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी स्पीसीज. मोनोग्राफ. नेक्स्ट इज मोनोग्राफ. मोनोग्राफ क्या होता है? इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली वन टैक्सोन. मोनो मतलब वन, तो इसमें क्या होगा? इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली वन स्पीसीज. ओके. नेक्स्ट बात करते हैं कैटलॉग. कैटलॉग क्या होता है? जब भी आप कोई लाइक दुकान में जाते हैं तो आपकी सैंपल दिखानी होती है ना. कैटलॉग में क्या होता है? सारे प्लांट के सैंपल्स होते हैं कि कितने सैंपल्स प्रिजर्व हो चुके हैं या कितने बाकी हैं, वो कैटलॉग में पता चल जाएगा. आप देखोगे अच्छे कैटलॉग में ये प्लांट स्पीसीज है, तो मेरे लिए इजी होगा कि मैं वो वाले फाइल खोजूँ तो मिल जाएगा. ओके. तो कैटलॉग में क्या होता है? उस प्लांट स्पीसीज के बारे में आप जान सकते हो कि कौन कौन से प्लांट ऑलरेडी प्रिजर्व हो चुके हैं. ओके. सो टैक्सोनॉमिकल एज कंप्लीट कर दिया मैंने. बेसिकली पूरी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, मैंने इसको आज कंप्लीट कर दिया. सो आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, क्योंकि आपको क्वेश्चंस आ रहा है कि नहीं. फॉर दैट आई विल हेल्प यू. आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस so that you all can solve in your home, or if you want I can provide you the NCERT notes even. So with this I have completed this class, so thank you so much.